My dear friends, today we're meditating on 1 John 5:4. प्यारे दोस्तों, आज हम मनन कर रहे हैं पहला यूहन्ना 5:4। It says, "Everyone who has been born of God overcomes the world." ये कहता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। Yes, my dear friends, God will help you overcome the world दोस्तों, परमेश्वर आपको संसार पर जय प्राप्त करने के लिए मदद as करेगा। He lives in you. जैसे कि वो आप में रहता You will है, be able to overcome anything that is of the world. आप संसार की हर बात पर विजयी हो पाएंगे। Yes, my dear friends, today you may be dealing with so many temptations आज आप शायद बहुत सी परीक्षाओं का सामना कर रहे होंगे because of the trouble in your life or because of so much pressure in your life. You may want to succumb to all of the bad habits or bad thoughts. आपके जीवन की मुश्किलें या फिर परेशानियों के कारण, इन बुरी आदतों के कारण शायद आप अपने जीवन में दब जाते होंगे। Maybe it is taking bribe from somebody हो सकता है ये किसी से घूस लेना हो or being dishonest in your work या अपने काम में बेईमानी करना हो to get ahead in your career. ताकि अपने करियर में आगे बढ़ Or पाएं। maybe it is the temptation of sin that will give you some peace or pleasure or a peace of mind in this world. या पाप का आनंद उठाना ताकि आपको कुछ समय के लिए संसार में शांति मिल पाए। To remove stress from your life, you may want to succumb to sin. अपने जीवन के तनाव को दूर करने के लिए आप शायद पाप में चले जाते होंगे। Or it may be to get validation from the people around you, you may want to sin. या लोगों की मान्यता पाने के लिए आप पाप में चले जाते होंगे। You may say, nobody is watching, how will they know that I'm doing all these small things? आपको लगता होगा कि कोई नहीं देख रहा है, उन्हें कैसे पता चलेगा। आप ये छोटे छोटे काम कर लेते होंगे। Or you may say, I'm not hurting anybody, what does it matter if I do this? या लगता होगा कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। My dear friends, we see in the book of Job that Job was a very wealthy and a very successful man. प्यारे दोस्तों, हम अयूब की किताब में देखते हैं कि अयूब बहुत धनी और सफल व्यक्ति था। But there was a situation where he lost everything. लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि उसने सब कुछ खो दिया। His success, his health, his family. उसकी सफलता, उसकी सेहत, उसका परिवार, He lost everything that he had. उसके पास जो था उसने सब खो दिया। In that situation, there was a word that came from his wife. We see in Job 2:9. ऐसी परिस्थिति में उसकी पत्नी ने क्या कहा, इसे हम अयूब 2:9 में देखते हैं। Are you still maintaining your integrity? क्या अभी भी तुम अपनी ईमानदारी को बनाए रखोगे? Curse God and die. परमेश्वर को कोस और मर जा। It would have been so easy for him to do that उसके लिए ऐसा करना तो बहुत ही आसान था, because he was in such a big oppression. क्योंकि वो इतने बड़े सताव में था। But my dear friends, he held on. लेकिन दोस्तों, वो स्थिर बना रहा। He knew that God will do justice for him. वो जानता था कि परमेश्वर उसके लिए न्याय करेगा। And in the same way in Job 42:10, इसी तरह से अयूब 42:10 में we see that God gave him back 2 times of what he lost. हम देखते हैं कि जो कुछ भी उसने खोया था, परमेश्वर ने उसे 2 गुना करके दिया। The Lord gave Job twice as much as he had before. अयूब के पास पहले जितना था, परमेश्वर ने उसे 2 गुना बढ़ा के दिया। Yes, my dear friends. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, Jesus says in John 16:33, यूहन्ना 16:33 में यीशु ने कहा, in this world you will have trouble, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, but take heart. परंतु ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Yes, my dear friends, we may face trouble in our life. हाँ दोस्तों, अपने जीवन में हम मुश्किलों का सामना करेंगे। Temptations may come our way, हमारे मार्ग में परीक्षाएं आएंगी and it may be so sweet to look और at. ये देखने में बहुत लुभावनी होंगी। And we may think nobody is watching, how will they know? हम सोचेंगे कि कोई नहीं देख रहा, उन्हें कैसे पता चलेगा। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, God wants us to live a righteous life, परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिक जीवन to जिएं, live with integrity, ईमानदारी से जिएं, and He will surely give you a reward for it, और वो निश्चय ही इसके लिए आपको प्रतिफल देगा, just as He did for Job. जैसा उसने अयूब के लिए किया। And be of good cheer, तो ढाढ़स बांध लें, because you have the overcomer of the world in you. क्योंकि संसार पर जय पाने वाला आपके अंदर है। So you will also be able to overcome all of these things तो आप इन सारी बातों के ऊपर जयवंत हो पाएंगे and have victory. और विजय पाएंगे। And you will have
a very successful and blessed life. और आप बहुत ही सफल और आशीषित जीवन पाएंगे। Shall we ask this overcomer to come and live with us आइए हम इस जयवंत से कहें कि हम में वास करे, so that he will help us overcome the world. कि वो संसार पर जय पाने के लिए हमारी मदद करे। Lord, today thank you that you're willing to come and live in us, Lord. धन्यवाद प्रभु कि तू इच्छा रखता है कि आज हम में आकर वास करे। Today help us to overcome all of these temptations, आज मदद कर कि हम इन सारी परीक्षाओं पर जयवंत हो all of जाएं, these pleasures, इन सारी लालसाओं पर all of the sin. और सारे पापों पर Come and live in us, Lord, आकर हम में वास कर and help प्रभु। us to overcome each of these things that come our way. हमारे मार्गों में आने वाली हर एक बातों पर हमें जयवंत होने में हमारी मदद कर। Help us to live a righteous life मदद कर कि हम एक धार्मिकता का so जीवन that जिएं, we will receive the same reward that you gave for Job, ताकि हम उसी प्रतिफल को पाने पाए जो तूने अय्यूब को दिया, and that we will be blessed and honored in the land. ताकि हम अपने देश में आशीषित हों और आदर Come पाएं। and live with तू us आ और हम में वास and कर, help us to overcome the world. संसार पर जय पाने में हमारी मदद कर। Thank you that you're giving this promise today. धन्यवाद कि तू आज हमें ये प्रतिज्ञा दे रहा We है। receive it in the name of Jesus. यीशु के नाम में हम इसे ले लेते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। On Saturday, the November 2nd, we will be there as a family to pray for you at Bethesda Prayer Center. 2 नवंबर शनिवार को बेथेस्दा प्रार्थना भवन में हम आपके मध्य में होंगे, एक परिवार के रूप में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। यह मेरी पोती आराधना है और मैं उसे बेथेस्दा ट्रेन में एक सामान की तरह उठा के रख के लेकर आई। यहाँ व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के दौरान डॉक्टर पॉल दिनकरन ने उसकी आंखों पे हाथ रखे प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे छू कर उसे साफ दृष्टि दी। The old things are passing away. पुरानी बातें बीत रही हैं। God is making you a new person. परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बना रहा है। Friends, you will never be shaken. प्रिय मित्रों, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। Come to this Bethesda blessing meeting. बेथेस्दा आशीष सभा में सहभागी होइए। Let's pray together. आइए मिलकर प्रार्थना करें Jesus will come और यीशु आएंगे and he will make you a new person as we pray together at Bethesda. और वो आपको नया व्यक्ति बनाएंगे जब हम बेथेस्दा में प्रार्थना करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। दिनांक शनिवार 2 नवंबर दोपहर 2 बजे। स्थान बेथेस्दा प्रार्थना भवन, कारुण्या नगर, कोयम्बटूर। आवास सुविधा और अधिक जानकारी के लिए तुरंत 9487846545 पर संपर्क करें। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से कोयम्बटूर कारुण्या नगर तक विशेष बस सुविधाएं उपलब्ध है। बेथेस्दा विशेष आशीष सभा में आते हैं, उसका आशीर्वाद और चमत्कार प्राप्त करते हैं और आनंदित होकर घर जाते हैं।